12ই জানুয়ারি স্বামীজির পুণ্য জন্মদিন। এই দিনটি ভারতবর্ষে যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজি মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ির সেখানে মঠাধ্যক্ষ হয়ে যিনি রয়েছেন। আমরা এই আউটরামঘাট ট্রানজিট ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে। রিমোট সুইচ টিপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর উদ্বোধন করবেন। আউটরামঘাটের এই ট্রানজিট ক্যাম্পের একটা বড় ভূমিকা, অগণিত পুণ্যার্থী এসে প্রথমে সমবেত হন এখানে, তারপর এখান থেকে তারা চলে যান পুণ্য স্নানের জন্য গঙ্গাসাগরে। 50টি ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের নতুন ভেহিকল তার যাত্রা শুরু আজ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত দেবেন, পতাকা নেড়ে ফ্ল্যাগ অফ করবেন। অগ্নি নির্বাপন এবং জরুরি পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সুজিত বসু রয়েছেন, তারা ফ্ল্যাগ অফ করে যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন। জঙ্গিপুরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনেরও উদ্বোধন করা হবে আজ এই মঞ্চ থেকেই। গাড়িগুলো আসবে, আমরা সেটা ওই দেখতে পাচ্ছি সুন্দরভাবে সেজে 25টি 5000 লিটার জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মাউন্টেড পাম্প ওয়াটার টেন্ডার এবং 25টি 2500 লিটার জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার। আগামী দিনে এই পরিষেবার আরও মানোন্নয়ন করবে। একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, গঙ্গা বক্ষে যাত্রী পারাপারের জন্য ভারতবর্ষের বুকে প্রথম এনজি ইলেকট্রিক ফেরি ভেসেল ঢেউ মিলেনিয়াম পার্কে সেটি রাখা রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটির উদ্বোধন করবেন, যা একই সঙ্গে উপকৃত করবে পরিবেশ, ফেরি ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিকে। ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকট্রিক ফেরি ভেসেল ঢেউ শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি অনুরোধ করব আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজি মহারাজ, তিনি আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। परतत्ते सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरत বীরেশম তং নমাম্যহম। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে আজকে এই গঙ্গাসাগর মেলা শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। স্বামীজির চরণে প্রণাম নিবেদন করি। গঙ্গাসাগর মেলা, গঙ্গা কেমন এটি বলে আমার কথা শেষ করব। চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে কুলুকুল কলকল প্রবাহিত আঁখি জল দেব মানবের এক সঙ্গে।
হিমবারি নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে, মিথ্যা এ কাহিনী, যুগে যুগে নরনারী অপুরাণ আঁখি বাড়ি পুষ্ট করিছে তব বাহিনী। অসাধারণ সুন্দর একটি লাইন। এই যে গঙ্গা আমরা দেখছি, এটিকে বলা হচ্ছে হিমালয়ের বরফগোলা জলে এই গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে না। যুগ যুগ ধরে নরনারী যত ক্রন্দন কেঁদেছেন, তাদের চোখের জল একীভূত হয়ে এই গঙ্গার রূপ ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব এই গঙ্গা মানে হচ্ছে সহানুভূতি, গঙ্গা মানে মানুষের কল্যাণ, দেবতাদেরও কল্যাণ, জগতের কল্যাণ, সকলের কল্যাণ। সেই মেলায় এসে আমরা সবাই আমাদের যুগ যুগ ধরে যে পাপ রাশি রয়েছে সেগুলো আমরা মোচন করি এবং আমরা তীর্থের ফল লাভ করি। সত্যিকারের তীর্থ বলতে গিয়ে বলা হয় শুদ্ধতা হচ্ছে সবচাইতে বড় তীর্থ। সত্যম তীর্থম, ক্ষমা তীর্থম, তীর্থম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্বভূত দয়া তীর্থম, সর্বত্রার জবমেবচ, জ্ঞানম তীর্থম, ধৃতিস্তীর্থম, পুণ্যতীর্থম উদাহৃতম, তীর্থানামপি তত্তীর্থম, বিশুদ্ধির মনসোপরা। এই গঙ্গা স্নান করে আমরা বিশুদ্ধ হলে আমাদের নিজেদের জীবনের কল্যাণ, সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সবাই ভালো থাকবেন, সকলের মঙ্গল কামনা করি দেবী গঙ্গার কাছে। স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজি মহারাজ সুন্দর করে গঙ্গার ব্যাখ্যাটি আমাদের সামনে রাখলেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সংযুক্ত সমিতির মাননীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী তারকনাথ ত্রিবেদী। তাকে অনুরোধ করব কিছু কথা বলবার জন্যে। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय जी, आज जो तीर्थ गंगा सागर मेला लगता है, देश से विदेश से, भारतवर्ष से तमाम तीर्थयात्री जो यहाँ आते हैं, मैं इसके विषय में कुछ कहूँ। उसके पहले मंच पर उपस्थित हैं हमारे मेयर फिरहाद हकीम जी, मिनिस्टर्स सुजीत बोस जी, पुलक दे जी और सभी सेक्रेटरी जितने हैं, होम सेक्रेटरी मानी चक्रवर्ती, नंदिनी चक्रवर्ती जी और सभी ऑफिसर्स। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, ममता बनर्जी जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व में एक बात कहता हूँ, संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के सोच और कर्म पर निर्भर करती है। माननीय मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर को नवान में एक मीटिंग की थी। वहाँ उनकी व्यवस्था को देखते हुए प्रत्येक डिपार्टमेंट को जिस तरह से उन्होंने सक्रिय किया और एक एक बात को, गंगा सागर मेला भारतवर्ष का अभूतपूर्व मेला हो, इसकी प्रक्रिया को जिस तरह से संचालित किया, ये देखने योग्य बात है। प्रत्येक चीज़ पे उनकी नज़र है। जो तीर्थयात्री भारतवर्ष से आ रहे हैं उनको किस तरह से अच्छी सेवा दी जाए, पश्चिम बंगाल में एक इतिहास रचने की जो कामना है हमारी मुख्यमंत्री जी में है। ये एक ऐसा गंगा सागर मेला, ऐसा कठिन ये यात्रा थी। आज से 10-12 साल पहले जो सरकारें थीं, यहाँ जो यात्री आते थे उनके विषय में वो सोचते थे कि कहाँ से कैसे आगे कैसे करें। सोच ऐसी थी कि सेवा नहीं थी, यहाँ तक कि जो चार्टर्ड बसें आती थी उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आप यहाँ आई हैं, उसके पहले से जब से मेरा संपर्क था उनके साथ, और उन्होंने जिस तरह से इसमें ध्यान दिया है, ये अतुलनीय है। ये एक ऐसा तीर्थ दुर्गम था, ये नदी से जुड़ा हुआ था, सीधा वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता था। आज की व्यवस्था अगर आप देखें तो कोई तीर्थयात्री, पहले ये था कि अगर हम घर से निकले, जो यात्री यहाँ आते थे और अगर सागर मेला तक पहुँच जाते थे तो उनके खाना पीना हजम हो जाता था, हड्डी पसली टेढ़ी हो जाती थी। आज जो यात्री आते हैं वो सोते हुए जाते हैं और यहाँ की यात्री सारे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हैं कि ये ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो हमारे चीज़ को इस तरह से ध्यान देती हैं। आप जानते हैं इस बार मैं वहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि अगर ऐसे मे आई हेल्प यू, इस तरह की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा है। अब देखो कि सागर में जगह जगह, पूरे सागर क्षेत्र में यहाँ सब जगह मे आई हेल्प यू डेस्क लगे हुए हैं।
आधुनिक व्यवस्था है। कोई तीर्थयात्री जहाँ भी रहे, अगर वो चाहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है, क्या व्यवस्था कहाँ है, कौन कैंप कहाँ है, आधुनिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री ने वो व्यवस्था कर दी है। अगर कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ है किसी की, तो ग्रीन चैनल है, तुरंत उस यात्री को कैसे डॉक्टरी सुविधा प्रदान की जाए, ये व्यवस्था आज है प्रत्येक यात्री के लिए। प्रत्येक जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सरकारी हों, चाहे प्रेस मीडिया के हों, चाहे हम स्वयंसेवी हों, सबके लिए एक्सीडेंटल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी किया गया है। तो ये सब संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के सोच के ऊपर। हम लोगों ने जहाँ भी आज ये गंगा आउटराम घाट, जहाँ जगह मिलने के लिए मुश्किल था, 56 NGO यहाँ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ के आगमन से, यहाँ आने से एक ऐसी प्रवृत्ति बनी है कि प्रत्येक NGO के जितने स्वयंसेवक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब टोस में पैरों के ऊपर खड़े रहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो विचार है, उसको कैसे अच्छे रूप में परिणित करें और कैसे जो यात्री यहाँ आते हैं उसकी प्रशंसा करते जाएं सारे भारतवर्ष में कि हाँ देखो, अगर आज माघ मेला भी चल रहा है, सैकड़ों बस बहुत अच्छा है, बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु वो जो है सड़क से जुड़ा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री बार बार चेष्टा कर रही है भारत सरकार से कि इस मेला को भी राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए। मैं इस मन से कहता हूं कि हम गंगा सागर तीर्थ यात्री संयुक्त समिति के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री की आवाज़ को उठाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक, और इस मेला को राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए। क्यों न इस मेला को, जो मेला ये महाभारत के 52 पर्व में लिखा है कि गंगा सब जगह पवित्र है, हरिद्वार में भी पवित्र है, इलाहाबाद में भी पवित्र हैं जहाँ, परंतु सागर में यहाँ जल के स्पर्श से, नमन करने से, स्नान करने से इतना पुण्य होता है कि चाहे सारी दुनिया के तीर्थस्थलों में घूमना है उससे ज़्यादा पुण्य है। तो ऐसे स्थल को अगर सरकार की इतनी इच्छा शक्ति है तो सब भारत सरकार को ज़रूरत है कि यहाँ अच्छी तरह से साथ कंधे से आज पूरा सहयोग करें। यहाँ आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से इतना बड़ा खर्च, इतनी व्यवस्था के, आर्थिक व्यवस्था के बीच भी वो पश्चिम बंगाल सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से वहन करती है। तो ये एक ऐसी बात है जिसको हम प्रत्येक यात्री, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक को, हम सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, इस मेला को राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि राजनीतिक स्तर से वो सोचती है, आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करिए, इस प्रस्ताव का बहुत बड़ा नतीजा आएगा और सारे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं वहाँ ये आवाज़ जाएगी कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस मेला को राष्ट्रीय मेला डिक्लेयर किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जो चाहती है वो काम सफल हो, क्योंकि पुल बनाना, बहुत सी व्यवस्थाएँ हैं। मैं समय কিছু বলতে পারি, যাই হোক আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না। माननीय मुख्यमंत्री को हम जितनी 56 संस्थाएं यहाँ हैं उनकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और उनके ही इस प्रगाढ़ प्रेम हम लोगों के साथ जो है, स्नेह है सभी संस्थाओं के साथ, उसके कारण हम निश्चित रूप से ये आश्वासन देते हैं उनको कि हम सब इतना अच्छा कार्य करेंगे कि आपको गर्व होगा कि नहीं, यहाँ स्वयं संस्थाएं सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। धन्यवाद। গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সংযুক্ত সমিতির মাননীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী তারকনাথ ত্রিবেদী কতটা দুর্গম ছিল এবং কতটা সুগম হয়েছে এবং সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অবদান কতটা সুন্দর করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আমরা সকলেই উন্মুখ হয়ে আছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু শুনব বলে। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থ্যাংক ইউ সতীনাথ দা। আমি প্রথমে প্রণাম জানাই স্বামীজিকে। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে এসেছেন লোকানন্দ মহারাজজি। আমরা প্রতি বছরই গঙ্গাসাগর মেলার দিন থেকেই স্বামীজির প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে আমরা কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলার এই যে ক্যাম্প, এই ক্যাম্প ভিজিটের কাজকর্ম চালু করি। আজকেও স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে নিশ্চয়ই নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নাম, চিরকালীন, চিরজনীন, বিশ্বজনীন, বিশ্ববরেণ্য হিসেবে লেখা থাকবে চিরতরে। অনেক ইতিহাস নতুন তৈরি হবে, অনেক ইতিহাস হয়তো পেরিয়ে যাবে,
কিন্তু স্বামীজির শিকাগোর বক্তৃতা কেউ ভুলবে না, এবং তিনি যেভাবে মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য হিসেবে যে কথা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, সর্বধর্ম সমন্বয়, সেই কথাটিকে মাথায় রেখে স্বামীজিও একদিন গরিবের ঘর থেকে নেতৃত্ব বেরোবে, মুচির ঘর থেকে, চামারের ঘর থেকে, নানা রকম দরিদ্র মানুষগুলো যারা আগে তার নিজস্ব সম্মানটুকু পর্যন্ত পেতেন না, তাদের সবাইকে সমাজের উপরে এনে স্থান দিয়েছিলেন যিনি, সেই মানুষটিকে প্রণাম জানিয়ে আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামে যাচ্ছি। আমার এখানে তারকনাথ ত্রিবেদী, যিনি এই মেলা কমিটির সভাপতি, হরিন্দর সিং এবং অন্যান্য মেম্বাররা। আমার এখানে উপস্থিত আছেন ফায়ার ব্রিগেড মিনিস্টার সুজিত বোস। 50টা গাড়ি এবং ফায়ার ব্রিগেডের, এবং জঙ্গিপুরে ফায়ার ব্রিগেড একটা স্টেশন তৈরি করা হলো, যেখানে খলিলুর রহমান এবং জাকির সাহেব সহ সকলে আছেন প্রশাসনের। আমার এখানে কলকাতার মেয়র এবং মিনিস্টার ফিরহাদ হাকিম আছে। অরূপ হয়তো আসতে পারেনি, কাজে আটকে গেছে, কিন্তু ছাত্র এবং সুভাষ মেলা, বিবেকানন্দ মেলা আমাদের চলবে এখন একেবারে 23 তারিখ পর্যন্ত, ব্লকে ব্লকে, জেলায় জেলায়, সেটা ওরা করবে, সেটা চলবে ইউথ স্পোর্টস থেকে। গঙ্গাসাগর মেলায় আমাদের মন্ত্রীরা অনেকেই থাকবেন। আমার সাথে এখানে পিএইচই মিনিস্টার পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, আমার এখানে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, সঞ্জয় মুখার্জি যিনি ডিজি আছেন ফায়ার ব্রিগেডের, তিনি আছেন। তাছাড়াও নন্দিনী আমাদের হোম সেক্রেটারি, তিনিও উপস্থিত আছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ট্রান্সপোর্ট প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমিত্র, খলিলুর রহমান থেকে শুরু করে যারা মেলাতে যাবেন, দেবাশিস কুমার, শান্তনু আইএনসিএর, এছাড়াও সুরিন্দর এবং অন্যান্য অফিসাররাও আছেন। তাদের সকলকে আমার অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। যতক্ষণ কাজটা সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু সদা জাগ্রত হিসেবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, প্রতি বছরই আমরা চেষ্টা করি শান্তিপূর্ণভাবে। প্রায় গত বছর 1 কোটির ওপর মানুষ এসেছিলেন গঙ্গাসাগরে, এবং এবার কুম্ভ মেলাও আছে, কিন্তু সেখানকার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাজার হাজার কোটি টাকা দেন, এবং সেখানে রেল, প্লেন, রাস্তার সাথে কানেক্টেড। কিন্তু আমাদের গঙ্গাসাগরের মেলাটা হচ্ছে জলের সাথে কানেক্টেড। এক একটা মানুষকে জল পেরিয়ে, কেউ নৌকায়, কেউ ভেসেলে, কেউ লঞ্চে, নানা রকমভাবে তাদের পরপার করতে হয়। এটা খুব ডিফিকাল্ট। সেই জন্যই বলা হতো আমাদের যারা আগের ইতিহাসের সাক্ষী, যারা এ মেলা তো দীর্ঘদিনের, তারা বলতেন সব সাগর বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিচ্ছু ছিল না। আমি যখন আসি, আমরা 2011 সালে একটা থাকার জায়গা ছিল না, এবং খুবই অপরিষ্কারভাবে লোকের ওপর তীর্থকর নেওয়া হতো, মানুষের দায়িত্ব নেওয়া হতো না। पहले कुछ भी नहीं था गंगा सागर में। मैंने जाके देखा 2011 में कि कुछ भी नहीं है। साफ सुथरों का बात तो छोड़िए, तब तो बहुत अल्पसंख्यक आदमी आते थे, बहुत मेहनत करके, तकलीफ उठा के, उसको खुद अपना कुछ करने पड़ता,
और उसको तीर्थ कर भी देने पड़ता। लेकिन हमारा सरकार आने का बाद गंगा सागर मेला को हम लोगों ने जो भी खर्चा होता है पूरा राज्य सरकार ओर से होता है। आप देखिए उधर में अभी तो 3 हेलीपैड स्टेशन भी बन गया, बहुत सारे रुकने के लिए रूम बन गया, जो तीर्थयात्री आते हैं उसको रुकने के लिए बंदोबस्त किया है। कितना बायो वॉशरूम, जो बायो टॉयलेट हम कहते हैं, कितना किया है। हमारा बड़ा मिनिस्टर रहेगा, कोई रहेगा मेला प्रांगण में, कोई रहेगा लॉट 8 में, कोई रहेगा कोचुबेरिया में। ऐसे हमारा वेस्ट बंगाल पुलिस का ओर से, कलकत्ता पुलिस का ओर से हायर ऑफिसर जो है वो भी रहेगा। एसपी डीएम तो रहेगा ही, लेकिन उनका साथ देने के लिए, जो राश होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन लोग, देखिए एक जब पानी से आता है जल्दीबाजी करना नहीं आता है, जल्दीबाजी करना नहीं चलेगा, कोई नहीं होता है। इसी के लिए कि पानी में कितना वेसल अवेलेबल है, तब तक कितना बर्ज है, कितना लॉन्च है, कितना लोगों को ले जाने सकता है एक दफे, उसको देख के तब पुलिस उसको छोड़ता है। ये लोग चला जाता है तो फिर नया बैच चला आता है। ऐसा करके करके उसको काकद्वीप तक ले आता है, लॉट 8 तक। उसका बाद हमारा बस रहता है, बस रहता है, ट्रेन रहता है, उससे चला आता है। ये बहुत बड़ा एक जोगों का शामिल है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोचा और हो गया। एक एक आदमी को पानी का अंदर से जाने पड़ता है। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से, ये मेला को नेशनल मेला डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप देखें डिफिकल्टीज का ओर से, तो गंगा सागर मेला इज वेरी टफ देन द कुंभ मेला। कुंभ मेला यू कैन गो बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, इट इज रोड कनेक्टेड। 3 नदी का एक मिलन स्थल में होता है। लेकिन गंगा सागर जाने का पहले आपको पहले तो काकद्वीप तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आइदर लॉन्च और वेसल और बाढ़ से आपको जाना पड़ेगा गंगा सागर का कोचुबेरिया उधर में, ओपार में। ओपार से फिर बस में जाना पड़ेगा और 45 मिनट्स, तब आपको दर्शन मिलेगा कपिल मुनि का आश्रम का और नहाने का। 14 तारीख सुबह में, सुबह से 15 तारीख सुबह तक स्नान करने का पवित्र टाइम है। लेकिन गंगा में स्नान करना हर रोज ही पवित्र होता है। हर दिन ही कोई ना कोई लोग जाते हैं, हर साल, हर तरह पूरा साल तीर्थयात्री ने जाते हैं। उधर में पीने का पानी का बंदोबस्त करा गया, कितना बांस का बंदोबस्त किया। 2300 सरकारी बस और 250 जो हमारा बेसरकारी बस भी है, और तो बाहर से भी टूरिस्ट बस आते हैं। इसका संख्या मिला के मिलजुल के ये 4000-5000 बस ही जाता है। 9 बार्ज हमने रख दिया, 32 वेसल रख दिया, 100 लंच रख दिया और 21 जेटी है, जो जेटी से आप लोग
ए पार से ऊपर जाते हैं, लॉन्च में उठते हैं, आप बिकेल में आप बार्ज में उठते हैं, आप वेसल में उठते हैं। और हॉट जेट व्हीकल में जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है। अगर कोई तीर्थयात्री जाके कोई जगह में वो मिसिंग हो गया तो उसको लिए हम ट्रैकिंग कर सके कि वो कहाँ पे है, उसको ढूंढ के निकालना, तब हमारा पुलिस करते हैं। बहुत सारे एनजीओज, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग भी हमारे साथ काम करते हैं। ट्रैफिक सिस्टम को जैसे अच्छा से करने के लिए हमने 16 बफर जोन बनाया और जैसे ओवर स्पीडिंग ना हो, स्पीड कंट्रोल को बंदोबस्त भी किया है। हर जगह पे मे आई हेल्प यू लगाया है और हमारा स्पीड कैलिब्रेटर भी लगाया है। और एक मौका है तीर्थयात्री के लिए, तीर्थयात्री नहीं है हम तो हटा दिया, लेकिन सिंगल टिकट में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई भी आदमी अगर जाए, पहले तो तीर्थ कर भी लेते हैं थे, अभी जाने आने के लिए ओनली 1 टिकट। और एक बात है कि आपका पता है कि हमारा हर बस में बहुत सारे जगह से आते हैं, बहुत सारे राज्यों से, जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, भाषा का। कई दक्षिण भारत से आते हैं तो कोई पूर्व भारत से आते हैं, कोई उत्तर भारत से आते हैं तो कोई पश्चिम से आते हैं। तो इसी के लिए उसको भाषा समझने के लिए और उसको मदद करने के लिए हमने हर बस में एक सागर बंधु भी रखा है, सागर दोस्त। बंगाल में इसको हम कहते हैं सागर बंधु। आपका कोई दिक्कत होने से वो आपको मदद करेगा। आपका पता है ये विंटर सीजन है जिसमें शीतकाल है। हम कहते हैं मकर संक्रांति में ज़्यादा ठंडा पड़ते हैं और गंगा सागर में तो ठंडा ठंडा ही होता है। तो इसी के लिए लॉन्च जब जाते हैं कभी कभी फॉग जाता होता है, इसी के लिए हम फॉग लाइट को बंदोबस्त भी किया है। जैसे हमारा बार्ज लॉन्च इसका कोई दिक्कत ना हो। पहले जुआर भाटा का मुताबिक लॉन्च वेसल जाते थे, हम स्पेशल इनिशिएटिव लेके हमारा गवर्नमेंट सबको मदद से हम ड्रेजिंग इतना अच्छा किया कि 24 घंटा में 20 घंटा लॉन्च चलेगा, वेसल चलेगा, बार्ज चलेगा, लेकिन 4 घंटा नहीं चलेगा। इसके लिए जल्दीबाजी करना कोई बात नहीं है। वो टाइम में नहीं जा सकते हैं कि पानी नहीं रहता है। समझ गया ना? 20 घंटा जा सकते हैं। हमारा 3,000 हमारा वॉलंटियर रहेगा पुलिस से, सिविक वॉलंटियर, प्लस हमारा बहुत एनजीओज भी उसका वॉलंटियर रखेगा। जैसे हम भारत सेवा संघ का महाराज का उधर में हम गया था, वो दिन हम पहले मीटिंग कर लेते हैं इधर में 1.5 महीना 2 महीना पहले, काम शुरू करते हैं 3 महीना पहले। काम होने के बाद मैं जाके पूरा देख के आते हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजी पुलिस सब हमारे साथ जाते हैं, मिनिस्टर लोग, प्रिंसिपल लोग, सेक्रेटरी लोग, डीएमएसपी रहते हैं, हर ऑफिसर रहते हैं, लाइन डिपार्टमेंट रहते हैं। इसका बाद हम घूम के आया 6-7 को। उसका बाद आज इधर में आई हुई है कि अभी मेरा तैयार है
एक कलकत्ता में जो आप लोग रहते हैं, जो मिला कमेटी है, ट्रांजिट में जो रहते हैं, उसको एक काम देखना है। क्या काम देखना है? कि आपका इधर से कितना बस छोड़ना चाहिए एक दफे। कि एक दफे 1000 बस छोड़ देंगे तो बस रास्ता में ट्रैफिक जैम हो जाएगा, कोई नहीं जा सकता है, ना आप सामने ना पीछा। इसी के लिए पुलिस का साथ कोऑर्डिनेशन करके, कंट्रोल करके ट्रैफिक सिस्टम जैसे अच्छा से काम करे। इसी के लिए मेला कमेटी को देखभाल करने के लिए भी हम उसको मदद चाहते हैं। कोई आदमी अगर उधर में जाके मर जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, नहीं होना चाहिए, कभी हम करने नहीं दिया। अगर कोई हो गया तो 9 to 17, 9 से 17 तारीख तक, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कॉमन सिटीजन हो, चाहे तीर्थयात्री हो, चाहे एनजीओ हो, सब लोगों को लिए गवर्नमेंट का ओर से हम 5 लाख रुपया करके इंश्योरेंस कर दिया इंडिविजुअली, जैसे कोई इंसिडेंट ना हो। और अगर कोई तबीयत खराब हो जाए, होना नहीं चाहिए, तो पूरा हम आसपास में मिलजुल के 515 बेड को इंटेंसिव केयर का साथ में बंदोबस्त किया गया है। इसमें फर्स्ट एड भी रहेगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रहेगा, पैरामेडिक स्टाफ भी रहेगा, एयर एम्बुलेंस भी रहेगा, वाटर एम्बुलेंस भी रहेगा, 100 एम्बुलेंस भी रहेगा। और जो क्रिटिकल पेशेंट है, इसको लिए हम ग्रीन कॉरिडोर का भी बंदोबस्त किया है। और एक बात हम लोगों ने किया है कि हर भाषा को लिए हम उधर से गंगा सागर मेला से चाहे जेटी से हो, हर भाषा में अनाउंसमेंट होगा। अगर आपको हिंदी पता है तो आप सुनेंगे क्या बोलते हैं उधर से, तो आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। अगर कोई मिस हो गया, कहाँ पे जाना है, आप गया उधर में, कब तक नहाने का टाइम है, वो लोग सब अनाउंस करेगा। हिंदी में करेगा, तेलुगु में करेगा, अंग्रेजी में करेगा, बांग्ला तो रहेगा, ये बंगाल है, लेकिन और सारे भाषा में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है, साउथ इंडियन से जो आएगा उसका भाषा में करेंगे। जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक बड़ा मेला, कुंभों से कम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा है। इसी के लिए इसको टॉपनेस अगर आप देखेंगे तो पानी से एक आदमी को लेके जाना और इसको वापस घर भेजना, ये बहुत दिक्कत का बात है। तब भी इसी के लिए कहते थे पहले कि हर सागर बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। लेकिन अभी लोगों ने कहता है नहीं, हर सागर एक बार, गंगा सागर बार। गंगा सागर इतना डेवलप किया है। और जो आपको पानी से जाने पड़ता है, हम केंद्रीय सरकार को बार रिक्वेस्ट किया है। एक तो नेशनल मेला के लिए कुंभ का दर्जा जैसे दिया है, हमारा इसमें हम खुश है, वो लोग भी अच्छा रहे। लेकिन साथ में इसको भी जातीय मेला का दरवाजा देना चाहिए था। हमने बहुत कोशिश किया, मेला कमेटी ने भी किया, कपिल मुनि आश्रम भी किया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और ये जो पानी से जाने पड़ता है, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। तो इसी के लिए अगर कोई पानी में गिर जाए, अगर कोई पानी में नहीं जा सका, अगर कोई पानी में ठीक से नहीं उठ सकता है, लॉन्च पे, वेसल में, बहुत सारा दिक्कत होता है। ये मुसीबत ना रहे, इसके लिए हम 10 साल से कोशिश किया
कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ब्रिज बना दे जिसमें कुंभों का मापिंग ये पूरा रोड कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये साल में हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, रुपया भी दे दिया, 1,500 करोड़ रुपया दे रहा है कि गंगा सागर ब्रिज हम बना रहे हैं। टेंडर भी हो गया, डीपीआर भी हो गया। 2-3 साल लगेगा इसको करने के लिए कि ये 5 किलोमीटर है बड़ा ब्रिज, और इसमें 4 लेन भी होगा जिसमें गाड़ी भी चलेगा। तो इसी के लिए ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे इंजीनियर जो आर्किटेक्चर है सबको लेके मिला के झुला के अच्छे से करना है। हम आधा करके छोड़ता नहीं है, हम पूरा कंप्लीट करने का बाद तो अभी उसको हम यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो इसी के लिए वो ब्रिज बन जाएगा, अभी हम रुपया दे दिया। और आप लोगों ने जो प्रसादी ले आता है, इसके लिए जो बैग हम यूज़ करने के लिए जा रहा है वो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग, जिसमें प्लास्टिक नहीं रहेगा, इको फ्रेंडली है। अभी तो ऑनलाइन में भी प्रसादी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, हर सिस्टम चालू किया है। और उधर में आरती भी होगा, गंगा आरती, जो 11, 12, 13 में गंगा आरती भी होगा पुण्य स्नान का पहले। हर दिन ही पुण्य होता है, लेकिन हम लोग तो कभी तिथि नक्षत्र मान के भी चलते हैं, वो तो ठीक है, जिसको जो सूट करते हैं। तो इसी के लिए अभी तो सब है। कपिल मुनि आश्रम 3 दफे पानी में घुस गया कि समुद्र बहुत आगे आ रहा है। तो एक दफे जाके हम बुलाया रामदास जी को, जो उसका प्रधान है। मैंने कहा देखो, हमने तो पूरा खर्चा करते हैं, अभी भी जो साइक्लोन हुआ कितना रास्ता खराब हो गया, सागर का पास भी कपिल मुनि आश्रम में पानी घुस गया। हमने तो खर्चा किया है, हम हर साल करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक दफा एक काम करिए, आप जो भी उधर में बहुत सारे ध्यान लोगों ने रुपया देता है, लेकिन वो रुपया बंगाल में नहीं रहता है। हम इसमें इंटरफेयर नहीं करने चाहूँगी, वो उसका हक है। उन्होंने ये रुपया लेके अयोध्या में जाते हैं, हम लोग सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देते हैं, बहुत सारे रुपया। तो मैंने बोला उससे कुछ रुपया 1 साल के लिए थोड़ा सा दो, जिसमें हम गंगा सागर का कपिल मुनि का आश्रम फिर ना घुस जाए पानी का अंदर में, कंक्रीट बना दो उधर में। हमारा जो काम है हम तो करते ही हैं, हम करते जाऊंगे, हम पूरा सब कुछ किया है। लेकिन एक काम आपको करना है, इसी के लिए अगर जिंदगी भर इसको इंटैक्ट रखना का है तो इसी के लिए उन्होंने एग्रीड किया है। मैं जाके बात किया है प्रधान का साथ में, जो मंदिर का प्रधान जी है, तो ज्ञानदास जी, उसका लड़का भी थे, बात भी किया है, उन्होंने एग्रीड भी किया है। लगता है उन्होंने हमको वादा किया है, उन्होंने एक काम करेंगे। तो हमारा ओर से जो काम है हम कर देंगे, उनका ओर से उनका जो काम है कर देंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि कैंप में जो आप लोग रहे, बहुत सारे एनजीओ भी आपको मदद करते हैं, लेकिन आग जलाने का पहले देख लो, आग जलाना मना है। सीसीटीवी में कवर होता है, पुलिस कंट्रोल करते हैं। अगर आप कोई आग जलाएंगे, वो आग लग के अगर पूरा सब कैंप जल जाए तो आप रहोगे कहाँ? इसमें आप थोड़ा ध्यान दो। और जो एनजीओज भी है खाना देते हैं, उसको हम कहेंगे बाहर से खाना तैयार करके ले आओ, साइड में पुलिस को सब बात करके एक जगह ले लो, आग जैसे ना लगे, जैसे और कोई कैंप का कोई मुसीबत ना हो।
कि हम लोग जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो सच्चा दिल से करते हैं, इसी के लिए कि हम कोई बुरा काम ना करें जो बुरा काम के लिए और किसी को कोई मुसीबत में पड़ सकता है। मेरे को पता है हमारा साधु संत जी थोड़ा थोड़ा आग जलाते हैं, छोटा से आप देख के रखते हैं संभाल के, तो एक पात्रों में कीजिए जिसका आग बाहर में ना जाए, ये आपको देखना है। सीसीटीवी में तो पुलिस मॉनिटरिंग 24 आवर्स करेंगे। इधर में हेल्थ कैंप भी हुआ है, पीने का पानी का भी पीएच कैंप हुआ है, आईएनसीए का भी कैंप हुआ है, फायर ब्रिगेड के भी कैंप हुआ है, कॉरपोरेशन का भी कैंप हुआ है, ट्रांसपोर्ट को भी कैंप हुआ है, बहुत सारे कैंप हुए हैं। आपका चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब हमारा स्टेट में मेहमान का रूप में आते हैं तो आप सोच लीजिए ये आपका ही घर है, इसको आप बाहर मत समझिए, ये आपका ही घर है। आप लोग अच्छा रहिए और अच्छा से स्नान करके मकाली मंदिर नया से हमारा स्काई वॉक हो रहा है, जो जो जगह में आपको जाना है दर्शन कीजिए और अच्छा से वापस जाइए घर में। जैसे आपका घर का आदमी भी चिंता करते रहे ना कि कब वापस आएगा, इतना दूर गया है, वो लोग बहुत चिंता करते हैं। वो लोगों को चिंता करने का ज़रूरत ना हो, ये भी आपको दिखना है। आपका परिवार हमारा भी परिवार है। अच्छा से रहिए, सुस्त रहिए और आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोगों को आभारी हूँ कि आप लोगों ने 2-4 बात मेरे को कहने का मौका दिया और आप लोगों ने इतना ठंडा में भी बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत सारे के हम देखते हैं जो एक स्वेटर भी नहीं पहना, एक चादर भी नहीं लिया, लेकिन ज्वर बुखार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो और अच्छा रहो। Thank you so much. Thanks to press media also for their cooperation. And I will appeal to all the media and press also. Please take care so that no narrative or no negative publicity. There should not be any provocation or instigation which can create some confusion among the people. Please take care for that. This is my humble request to all of you. And you also visit the Ganga Sagar Mela. Every arrangement will be there. I have already instructed the administration to take all care. Thank you so much. Thanks a lot, Satyanath da, and সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলা, অগণিত পুণ্যার্থীর সমাবেশ। এই মুহূর্তে 14 তারিখে পুণ্য স্নান, এখন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। আজ এখানে আউটরাম ট্রানজিট ক্যাম্পে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন গঙ্গাসাগর মেলার এবং অগণিত তীর্থযাত্রীর স্বার্থে তাদের সুবিধার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ একটি রূপ আমরা পেলাম। আগামী দিনে যখন আমরা সোজাসুজি সড়ক পথে এখানে পৌঁছতে পারব, নিঃসন্দেহে একটি ইতিহাস রচিত হবে। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার, নতুনভাবে প্রতিধ্বনিত হবে গঙ্গাসাগর বারবার, গঙ্গাসাগর বারবার। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমন্ত্রণ গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নানের জন্যে।